Hi Raju, how are you? Shall we get started with this week's chit chat session? Hi, sir. Yes. So, if you notice, let's quickly take a look at what the markets have been doing this week. This is your Nifty chart in 0.1% box size, and we have this vertical count which is still open, which is pointing to 19,246, but that invalidation level for this target is way down at 13,600. So for all practical purposes, it might not be too relevant in the current context. If you look at the close-up picture, there are signs of bullishness that is shaping up. So we have a bear trap pattern. So price has crossed a shorter term 45-degree trend line, and it has also closed above the moving average. So a lot of positive things are happening at Nifty level. But if you look at Bank Nifty, the picture is slightly not very bullish. So the price is still trading below the moving average. So you have a bullish triangle breakout that has happened. So pattern wise, it is looking bullish, but price still has to cross the moving average and sustain some momentum. And it's very essential that Bank Nifty also participates and lends a helping hand to the Nifty. And if you look at the sector matrix, there is interesting thing that is happening. uh, we have seen a bounce in the Nifty from November 29th low. And interestingly, as the Nifty recovered, lot of sectoral index has also shown recovery. So if you look at the PFX% breadth indicator of the sectors, you will see that lot of sectors are trading above 50 and few of them are trading above 75, which indicates that there is widespread sector participation that is happening while the Nifty has also recovered from the March 29 low. So it is a healthy sign which indicates that a lot more stocks and sectors are participating in this recovery. And let us also look at some other breadth indicators. This is your PFX% of Nifty 50. So there has been a recovery in the index, and if you notice, there is a much more appreciable recovery in the PFX% short-term breadth indicator. This is based on 1% box size. So you will notice that there is a very clear positive divergence. The price made almost a double bottom here, but in the indicator, if you notice, we made a much higher bottom, and there is a very healthy recovery in the breadth indicator. And if you go to the slightly next time frame breadth indicator using 3% box size, we are in oversold territory at 18, which indicates that there is room for recovery to happen. And another interesting thing is, if you look at the broader markets, if you look at the Nifty mid small cap index, there is again, if you notice, we made a kind of a double bottom. So we can call this a shakeout pattern here. There was a hammer pattern, and the index started recovering, the Nifty mid small cap 400 index. And more interestingly, the breadth is also recovering. So this is the percentage of stocks that are trading above the 200-day moving average in the Nifty mid small cap 400 index. So you will notice that there is a very healthy recovery in the breadth from 57%. We are currently at 68%, which is again a very healthy sign. So the long-term breadth indicator of the broader markets is improving, and Nifty by itself has shown a very healthy improvement. And before I wind up, let us take a quick look at the relative strength chart of the broader markets. So we will look at Nifty mid small cap 400 index divided by Nifty 5 and Nifty 50. Again, things are looking very interesting here. If you notice, um, there is a turtle breakout, a triple top buy pattern, and the ratio chart has also broken above the downsloping 45-degree trend line. So things are looking bullish, whether you look at it from a relative strength perspective or from a breadth perspective. So the broader markets are looking good, and Nifty in itself is also looking good. And if you look at intraday chart of Nifty, so I've just taken a screenshot of Nifty spot in 1 minute time frame. So we had this low that was made in November on November 29th, and then price has started recovering.
So here, if you notice, there is multiple resistance somewhere around 17,520, and slightly above that you have a bigger resistance around 17,550 to 590. So once we clear this resistance zone around 17,600 odd levels, then I think the path will be clear for a rally to this congestion zone here, somewhere around 18,100, 200 odd levels. So what I am looking at is a breakout above 17,600 to begin with, and once that happens, I'm looking at a potential rally up to maybe say 18,100 to 18,200. So the breadth is very accommodative for this rally. So what we need as a confirmation is a breakout above 17,600 on the Nifty. So that is basically it from my side, Raju. So do you have anything interesting to share? I think we can talk about the DSmart line. There were some questions about what this indicator is all about. तो कुछ है आपके मन में about what this indicator is and how we can use it? यस सर। सो आज जो हम लोग डी स्मार्ट लाइन पे ही बात कर लेते हैं और रेनको पे। सो एक बिफोर दैट एक आपका इंटरेस्टिंग चार्ट जो आरएस का था। सो निफ्टी 400 मीट स्मॉल कैप अपॉन 400। सो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न जो मुझे दिखा। सो क्लस्टर ऑफ पैटर्न इज हियर। देयर इज अ बुलिश ब्रॉडनिंग प्लस ट्रिपल टॉप प्लस ट्रैप। Right. Correct. So there is a Yeah. cluster of pattern as well as the down sloping trend line is breaking. Right. So ये काफी इंटरेस्टिंग है जो इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी मिड स्मॉल कैप में पॉसिबली आउट परफॉर्मेंस यहां से और स्टार्ट होगा। Correct. Correct. Yeah. यस सर। That's सो interesting. Yeah. ओके, सो अभी लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हाँ. सो आज जो हम एक बात करेंगे रेनको चार्ट पे, हाँ. जिसमें डी स्मार्ट लाइन। Right. बिकॉज काफी लोगों का ये क्वेश्चन है डी स्मार्ट लाइन कैसे यूज किया जाए या कैसे ट्रेडिंग। सो बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे कैसे वो प्लॉट होता है या कुछ। हाँ. सो जस्ट लेट मी ओपन अ फर्स्ट निफ्टी रेनको चार्ट। सो हाँ. दिस इज 1% ब्रेक साइड। सी Okay. जो रेनको चार्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो ब्रीक में होता है। जो उसका बेसिक अगर वीडियो अगर व्यूअर्स को अगर देखना है सो अपने यूट्यूब पे प्लस insight.definance पे वहां पे अपलोडेड है। सो आप जाके देख सकते हो। सो इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन में आज डिस्कस नहीं कर रहा हूं। बट रेनको चार्ट या कोई भी चार्ट जो है इसके साथ एक सबका रहता है कि कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाए फॉर बाई या सेल। सो मोस्टली जो यूज करते हैं जो इंडिकेटर वो सुपर ट्रेंड होता है प्लस जो डॉनचन चैनल यानी हाँ. ट्रेंड फॉलोइंग जो सिस्टम होता है डॉनचन चैनल। उसके साथ अगर हम बात करें डिस्पैरिटी जो 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 लास्ट वीक में प्रशांत सर भी डिस्कस किए थे डिस्पैरिटी क्या हाँ. होता है। सो हाँ. डिस्पैरिटी एक हो सकता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। प्लस रेनको का एक अपना खुद का एक इंडिकेटर है जैसे डीएनएफ में होता है एक्सो जोन। सो यहाँ पे ब्रिक जोन। सो ब्रिक जोन एक ये है प्लस बॉलिंजर बैंड। ये सभी इंडिकेटर एक यूज हो सकता है फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। सो ये सब इंडिकेटर को अगर हम कंक्लूड करके यानी मिलाकर एक इंडिकेटर यहाँ एक बनाया गया है जिसका नाम है डी स्मार्ट लाइन। हम्म. सो जो डी स्मार्ट लाइन ये सब कुछ कवर करता है यानी आपका सुपर ट्रेंड हम्म. प्लस ब्रिक जोन डाउनचेन चैनल डिस्पैरिटी ये सबका कॉम्बिनेशन। Right. Right. सुपर ट्रेंड का अगर हम बात करें सो सुपर ट्रेंड में क्या होता है कि सी दिस अभी लेट मी यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम डी स्मार्ट लाइन। सो जो रेकमेंडेड जो Default settings वही यूज करना है. बाय हाँ. डिफॉल्ट आप यूज करो सो 40 Right. 30 और 2। बट Right. यहाँ पे एक सबसे ये क्या है जो मल्टीप्लायर आपको जो दिख रहा है। सो हम्म. मल्टीप्लायर चेंज हो जाता है
बेस्ड ऑन एक्सो जोन, यानी सॉरी ब्रिक जोन। हाँ सो हाँ क्या होता है अभी, उसके पहले अगर हम ऐड करें, ऐड स्टडी और ब्रिक जोन, सो ये इंडिकेट करता है कि लास्ट 40 ब्रिक में ग्रीन ब्रिक ज्यादा है या रेड ब्रिक है, राइट। ये इंडिकेट करता है। अगर आप देखो, सो दिस इज अ रेड, और ये ब्लैक जो दिख रहा है, यानी अगर इसका कलर चेंज कर दे तो ग्रीन हो जाएगा। So तो इसका basically, मतलब क्या है कि last 40 लास्ट, bricks में it calculates the total number of green bricks minus total number of red bricks, right? ये करेक्ट indicator वही शो करता है, एक्सो जोन, करेक्ट, ब्रिक जोन वाला। हाँ एग्जैक्टली। सो अगर 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 जीरो के ऊपर है और ये जो ब्लैक जोन दिख रहा है, तो ये हाँ इंडिकेट करता है कि ये ट्रेंडिंग है, करेक्ट, सो अपसाइड का, सो मार्केट राइट इज ट्रेंडिंग। सेम वाइस वर्सा ये डाउन साइड का है। सो राइट अगर रेट दिख रहा है, इसका मतलब ये भी डाउन साइड की तरफ ट्रेंडिंग है। राइट डिफरेंट चीज, सो ये पार्ट जो जीरो के जो नजदीक जो मूव करता है, सो ये अगर आप देखो यहाँ, सो दिस हाँ इज सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव, यहाँ राइट। पे ट्रेंड नहीं है। तो हम्म। अकॉर्डिंग टू दिस ब्रीफ जोन, ये आपका मल्टीप्लायर चेंज हो जाता है। तो अगर आपका ट्रेंडिंग है, सो आपका ये जो लाइन जो आपको दिख रहा है, सो राइट। ऑटोमेटिक ट्रायल होता है। जब ओके। आपका साइडवेज, जब आपका जो मूव जो दिखता है, सो वो फ्लैट हो जाता है। राइट राइट सो सो जनरली क्या होता है कि जब साइडवेज मूव होता है, सो वहां पे स्टॉप लॉस, जो ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे एक आप बोल सकते हो कि वो फेज जो होता है उसके लिए काफी टफ होता है, जहां पे उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। बिकॉज ब्रेकआउट देगा, फिर से डाउन साइड ब्रेकआउट देगा और वहां पे ट्रिगर होता है। बट ये उस सबको टेक केयर करता है, और ये जो लाइन है, ये ऑटोमेटिक फ्लैट हो जाता है वहां पे ट्रेंडिंग के राइट बाद। राइट। ठीक है, तो अब ये आपका बेसिक हुआ कि जो इसमें हम लोग कवर करते हैं कि क्या क्या। जस्ट सेकेंड, सो डिग जोन हम रिमूव करते हैं यहां से। अब आता है कि ये कौन कौन से जो ब्रिक साइज हम यूज कर सकते हैं किसके लिए। बिकॉज जो रेन को जो यूज करते हैं बेसिक, उसको थोड़ा ये करें कि अगर आप शॉर्ट टर्म अगर कोई चार्ट अगर देखना चाहते हो, सो यू कैन यूज 0.25% टू 0.5% ब्रिक साइज। अगर मीडियम टर्म अगर आप रीड करते हो चार्ट, सो 1% और 2%, और लॉन्ग टर्म के लिए 3 to 5% आप देख सकते हो। पर इसे अगर इफ यू लाइक ट्रेडिंग में कैसे यूज करें राजू? यानी कि ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लें इस इंडिकेटर को यूज करके? करेक्ट सर, उस पे हम आते हैं। पहले ब्रिक साइज राइट। थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि ओ ब्रिक अच्छा, साइज ओके। आपको कौन सा यूज कर सकते हो। उसके बाद इस पे ट्रेडिंग पे हम आते हैं कि कैसे आप इसको आप यूज कर सकते हो। जस्ट ओके। सेकेंड। सो अगर आप इंट्राडे अगर आप यूज करते हो, सो 0.25% 1 मिनट जो टाइम फ्रेम है वो आप यूज कर सकते हो। अनदर इज इंडेक्स के लिए 0.10, एंड बैंक निफ्टी 0.15। ठीक है, ओके। अब आते हैं इसका ये यानी ब्रिक साइज हो गया। अब आते हैं इसको ट्रेडिंग कैसे करें। ठीक है, सो जैसे मैंने बोला कि इंडेक्स के लिए 0.10 आप यूज कर सकते हो। सो यहाँ गए और मैंने चेंज किया 0. निफ्टी, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का हो गया। राइट। मैंने ऐड किया यहाँ डीएस स्मार्ट लाइन, हम्म। बाय डिफॉल्ट जो जो पैरामीटर है वही मैंने यूज किया। सो इसमें आप देखो, फर्स्ट थिंग है ये लाइन आपको दिख रहा है। सो इस लाइन को यूज करके हम लोग, यानी मल्टीपल मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो ये एक हो सकता है कि स्टॉप एंड रिवर्स सिस्टम। सो हम्म। जैसे प्राइस यानी ब्रेक इस लाइन के ऊपर ब्रेक करता है या ब्रेक फॉर्म होता है, सो विल गो लॉन्ग, एंड ओके। जब तक इस लाइन के नीचे नहीं आता है तब तक विल ट्रेल विथ स्टॉप लॉस। ठीक है, ओके। सो जैसे लेट्स एग्जांपल हियर, सो ब्रीक जो है ये क्रॉस किया है लाइन को, ये स्मार्ट लाइन को, सो राइट। एट व्हाट लेवल 17,207। सो हम्म। वहां हम लोग लॉन्ग करेंगे, और हाँ उसका जो
कंटिन्यूअस हम लोग ट्रेल करते रहेंगे और करंट जो सिचुएशन है वहां पे मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा, सो आप डी स्मार्ट लाइन का जो लाइन है 17,321, ओके, तो वो हम यूज कर सकते हैं कि वो एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो राइट, यहाँ पे आप देखो ये फ्लैट हो गया, क्यों? बिकॉज ऑफ साइडवेज। ठीक है, राइट, तो ये एक मेथड हो सकता है कि ये स्टॉप एंड रिवर्स। ठीक है, हम्म, अनदर मेथड क्या हो सकता है कि अगर आप एज ए मान लो कि यहाँ की हम पैटर्न ट्रेडर है, तो मेरे लिए जैसे डी स्मार्ट लाइन का ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ, सो इट्स साइन ऑफ बुलिशनेस, करेक्ट? राइट, सो राइट, एनी बुलिश स्विंग ब्रेकआउट और बुलिश वन बैक और टू बैक, कोई भी जो पैटर्न जो आपको इसमें आता है, सो बेसिक पैटर्न इन पॉइंट एंड फिगर सॉरी रेनको चार्ट इज अ बुलिश स्विंग ब्रेकआउट एंड बेरिश स्विंग ब्रेकआउट। सो राइट, यहाँ अगर जैसे देखो आप बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हियर, सो ये एक स्विंग हुआ, प्रीवियस स्विंग के जैसे ऊपर ब्रेक करता है, सो आई कैन बाय, या वन बैक टू बैक से, सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ वन बैक बुलिश, जो आपका बुलिश ट्रेंड और उसके बाद वन ब्रिक रिवर्स हुआ और इमीडिएट स्विंग ब्रेकआउट हुआ, सो दिस इज हाँ, वन ब्रिक बैक, वन बैक अगेन पैटर्न, हाँ, हियर यू कैन सी अ टू ब्रिक बैक। सो ये पैटर्न आप यूज कर सकते हो जो पैटर्न ट्रेडर है। ठीक है, अब इसमें जो डी स्मार्ट लाइन में दो चीज आप देख रहे होंगे, एक दो तीन चीज, एक एरो है, ग्रीन हाँ, एरो और रेड एरो, इधर सॉरी डाउन साइड भी एरो इधर दिख रहा है। राइट, तो ये एरो क्या इंडिकेट करता है? अब जैसे मैंने बोला कि ये डॉन्चन चैनल भी इसमें इंक्लूड है, उसका भी जो ये, सो जैसे ये प्राइस जो है डॉन्चन चैनल को ब्रेक करता है, सो यहां आपको ये एरो आपको दिखना शुरू हो जाता है अपसाइड का। राइट, ठीक है, सो ये एरो वो दिखाता है डॉन्चन चैनल का। सेम वे ये डॉन्चन चैनल का जब डाउन साइड यानी यानी हाँ। जो लोअर बैंड जब ब्रेक करता है, सो ये कंटिन्यूअस आपको शो करना शुरू हो जाता है। आप डॉन्चिन चैनल प्लॉट करेंगे तो और आसानी से समझ आएगा। ठीक देन है, यू कैन जस्ट सो डिलीट द डॉन्चिन चैनल आफ्टर आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन। या सो जस्ट अ सेकेंड, डॉन्चन चैनल इस पे हम ऐड कर रहे हैं 40 का ही। हाँ, हाँ, सो आप यहां देखो ये डॉन्चन चैनल का ये जब डाउन नीचे साइड, कटता है तो यू सी द डाउन एरो। करेक्ट, सो डाउन एरो कंटिन्यूअस ये प्लॉट होगा। सेम वे अप साइड का यहां प्लॉट हुआ है। राइट, 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 ठीक है, या, तो ये हुआ एरो का पार्ट। सो इसको हाँ, डॉन्चन चैनल को मैं रिमूव करता हूं अभी। राइट, सो ये जैसे एरो अगर इंडिकेट करता है, सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि डॉन्चन चैनल में भी ब्रेकआउट हुआ है। सो ये सॉर्ट ऑफ बुलिशनेस, सेम वे ये बेरिशनेस दिखाता राइट, है। अनदर थिंग, ये जो दिखता है आपको स्टार, हाँ, सो स्टार क्या शो करता है कि डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी यानी डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मूविंग एवरेज। सो हियर यू कैन सी अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड दिस डिस्पैरिटी लाइन। ठीक है, हम्म, हम्म, सो ये इंडिकेट करता है स्टार कि यहां पे डिफरेंस जो है थोड़ा ज्यादा हो गया है। सो अगर मान लो कि यहाँ की इसको यूज करना है कि इस स्टार को, सो स्टार को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं कि फॉर प्रॉफिट बुकिंग, सो पार्शियल प्रॉफिट बुक हम लोग कर सकते हैं यहाँ, जैसे आपको हम्म, स्टार बना। ठीक है, अब यहाँ पे दो दो चीज आप देखिए सर, एक ये देखो, ये एक दिख रहा है कि कंटिन्यूअस अपसाइड एरो प्लस हाँ, अपसाइड एरो प्लस ये स्टार, बट हाँ, यहां पे कोई भी अपसाइड एरो नहीं है, फिर भी ये स्टार। राइट, ठीक है, सो दोनों में अंतर क्या है? यहां पे अंतर क्या है कि यहां पे जो डिस्पैरिटी हुआ है, बट जो राइट, डॉन्चिन चैनल भी ब्रेकआउट हुआ है और उस साइड जा रहा है। यहां पे डॉन्चिन चैनल का अपसाइड जो है ब्रेकआउट नहीं हुआ है, राइट, पर प्राइस और जो जो एवरेज यानी जो डिफरेंस जो हुआ है, ये जो आपको जो दिख रहा है जो दोनों में डिफरेंस, यानी यहाँ पे डॉन्चिन चैनल ब्रेक नहीं किया है, सो इट्स सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इजंट इट?
हाँ और साथ में डिस्पैरिटी भी है। सो राइट। प्राइस जो है यहाँ से पॉसिबल की डाउन साइड है, यानी रिट्रेस हो। डाउन साइड हम नहीं हम्म बोल सकते, रिट्रेस हो सकता है। हम्म। सो ये अगर विदाउट एरो अगर कोई स्टार अगर मिलता है, सो ये पॉसिबिलिटी रहता है जो रिवर्सल ट्रेड, यानी जो 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 अप यानी ऊपर में सेल करने का या नीचे में बाई करने का जो देखते हैं, सो हाँ वो हाँ सॉर्ट हाँ। ऑफ ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अब इसमें एक और इसमें है पी, आपको दिख रहा होगा हर एक हाँ जगह पी। सो ये क्या है? पी इज ए पुल बैक। राइट। तो अगर अगर जैसे ये डी स्मार्ट लाइन के नीचे है और प्राइस अगर यहाँ अगर आता है इसके नजदीक, सो ये पुल बैक के आप यूज कर सकते हो। सेम वे अप, यानी अगर अपसाइड है, सो ये डाउन साइड पी आया, सो यहाँ आप बाई कर सकते हो स्विंग ब्रेकआउट पे या वन बैक या टू बैक पे। सो ये पुल बैक है। सो ये मल्टीपल हम लोग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं डी स्मार्ट लाइन को यूज करते हुए। स्टॉप एंड रिवर्स, सिंपल प्राइस पैटर्न, हम्म और स्टार को यूज करके डिस्पैरिटी का, यानी वहां पे प्रॉफिट बुकिंग, अगर स्टॉप एंड रिवर्स कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी यूज करके ये सभी हम्म। हम लोग यूज कर सकते हैं। राइट। सो ये हुआ निफ्टी का, सेम अप्लीकेबल विथ स्टॉक्स भी। अब अगर हमको मान लो हम्म कि स्कैनर मुझे बनाना है, सो सिंपल अगर हम गए, लेट मी इमीडिएट एक स्कैनर बना देते हैं। सिस्टम बिल्डर में गए कि डी स्मार्ट लाइन बुलिस। हाँ। सो मैंने डी स्मार्ट लाइन लिया, प्राइस एबव 0 पे किया, एक बार हम्म और ऐड किया और डी स्मार्ट लाइन लिया, यहाँ प्राइस बिलो 1। ओके। मैंने क्या कर दिया, 1 एंड 2 एक्सप्रेशन दे दिया, ओके किया, सेव कर दिया। सो बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स जहां पे डी स्मार्ट बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, प्राइस नीचे से ऊपर गया है। करेक्ट। सो ये हम रेनको स्कैनर में आए, निफ्टी 500 मैंने सिलेक्ट कर लिया, हाँ। और यहाँ मैंने प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड में जो मैंने बनाया है डी स्मार्ट लाइन बुलिस अभी। हाँ। और अगर 1% के ब्रिक पे या 0.5 अगर हम मुझे देखना है तो 0.5 पे अगर देखते हैं और बहुत स्कैन ज्यादा किए, होगा। तो इसमें समझ आ जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक जो है जो रिसेंटली ब्रेकआउट दिए हैं। सो आरती, अदानी ग्रीन, अंबर, महिंद्रा, महाबैंक, बीपीसीएल, ये सब है। अब ऐड अगर हम किए डी स्मार्ट लाइन, सो हियर यू कैन हम्म। सी, सो ये ब्रेकआउट अभी आया है। सो रिसेंट सेम आप बेयरिस का भी आप बना सकते हो स्कैनर में, राइट और राइट। इसको आप इवन रियल टाइम में भी आप इसको रन कर सकते हो कि इधर डी स्मार्ट लाइन कौन से स्टॉक ब्रेक किया है, डिपेंड हम्म। अपॉन योर ब्रिक साइज। हम्म। सो बेसिकली ये अपना ये सब कुछ इसमें है। So डी basically, we can use it as a trend filter. We can use it as a trading system in itself. Stop and reverse का या फिर pullback का कुछ करना है तो उसका भी हो सकता है. So it is like, करेक्ट। can we say that D-Smart is a much more improved version of the MUST indicator? यस यू कैन सी सर, बिकॉज क्या है, एक 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 ये चीज क्या है कि मस्त में वी हैव कैलकुलेटेड ओनली फॉर मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड। Super बट trend. हाँ. यहाँ पे स्मार्ट लाइन में हम लोग बहुत कुछ जो डिस्पैरिटी भी ऐड किए हैं, सुपर ट्रेंड भी ऐड है, Right. प्लस आपका जो ऐड है ब्रिक साइड, ब्रिक जोन भी ऐड है, हाँ. डॉनचिन हाँ. चैनल भी ऐड है। सो डॉनचिन चैनल आप अगर देखेंगे तो यानी वन ऑफ द फेवरेट फॉर ट्रेंड फॉलोइंग, Right. जो भी ट्रेंड फॉलोअर है उसके लिए फेवरेट होता है। तो बराबर. ये सब कुछ ऐड है इधर। हम्म. सो और कुछ अगर इसमें इससे रिलेटेड अगर आपको सर कुछ कोई क्वेश्चन है जहां पे,
नहीं, आप एक बार 1% में स्कैन कीजिए, लेट अस सी इफ वी आर गेटिंग सम इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स। ओके, जस्ट लेट मी निफ्टी और निफ्टी, 500। बैंक निफ्टी में आपका कुछ और ऐड करना है आपको इन टर्म्स ऑफ कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, या चार्ट में कुछ अच्छा दिख रहा है आपको, कुछ पैटर्न्स या जो भी है? सो निफ्टी यानी बेस्ड ऑन डीए स्मार्ट लाइन निफ्टी में। नहीं नहीं, वैसे जनरली। सो जनरली अगर निफ्टी में अगर हम देखें 0.10 चार्ट पे, हाँ जो आप आई थिंक शो किए हैं ऑलरेडी, हाँ 1 मिनट पीएनएफ चार्ट, सो ये आप ऑलरेडी शो किए हैं। यहाँ अगर मैं ड्रॉ करूं ये एंकर पॉइंट, सो राइट। शॉर्ट ऑफ प्राइस जो है नियर एंकर पॉइंट है अभी भी। हाँ ब्रेकआउट हाँ। अभी भी नहीं आया है जो आप शो किए हैं राइट राइट। 17,600 के ऊपर। हाँ, बट पर मैंने अगर जो शो किया था वो निफ्टी स्पॉट का था। ओ हाँ, निफ्टी स्पॉट तो का था वो। हाँ, तो सो दोनों अगर अगर इसको देखें कि ये दोनों लाइन, सो दो ये यहाँ पे है। सो आपको अच्छा, अगर ये बराबर वही ब्रेकआउट दिखा अगर रहा है। मिलता है, सो अनदर रेंज फॉर निफ्टी फ्यूचर इज दिस। राइट राइट। सो मोस्टली सेटअप इज बुलिश, बट पॉसिबल कि यहाँ की एक कुछ टाइम इधर प्राइस ये हो निकाले, उसके बाद फिर अपसाइड का दिखे राइट। 18,000 और 18,200। बट ओवरऑल चार्ट बुलिश दिख रहा है। अनदर हाँ थिंग, पॉइंट वन पे अगर हम देखें यानी हॉरिजेंटल काउंट का, हाँ सो हाँ। आप इसको हॉरिजेंटल काउंट अगर हम एग्रेसिव भी अगर आप ले सकते हो, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ वो भी वही दिखा रहा 18,125। है। हम्म। सो ये बिकॉज ये आपको 1 जून से निकला है, राइट। बट यस उसके लिए 17,600 क्रॉस शुड करना है। बी करेक्ट। इसमें डीवीएल, हैथवे और ट्रेडेंट, ये तीन आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। सो ऐसे इसमें बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। हाँ नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट इज जस्ट रिकवरिंग, नो, तो शायद एक या 2 दिन और ये रैली चलता है तो यू विल सी मोर कैंडिडेट्स। फ्रॉम एग्जैक्टली बॉटम वी आर एग्जैक्टली जस्ट टर्निंग अराउंड। एग्जैक्टली। अभी जैसे जैसे निफ्टी है स्मॉल मिड कैप जो 400, बिकॉज आरएस हाँ। भी आउट परफॉर्म कर रहा है। सो जब राइट जैसे अगर अब जो है ना ये डी स्मार्ट लाइन, उस पे आप रन करके आप देख सकते हो। राइट राइट राइट। दैट्स इंटरेस्टिंग, या। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। ठीक है यार, it was interesting to know about D-Smart line and what are the components. It looks like a very interesting indicator, and I hope people will start using it more effectively. Thanks a lot, Raju, for that explanation. ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट जो हम लोग कुछ इसको और आगे लेकर जाएंगे, Okay. जो रिनको पे, और उस पे फिर Hmm. कभी और फिर बात करेंगे। Definitely. Looking forward to it. ओके सर, ओके सर, थैंक Bye. यू। Yeah. थैंक यू, बाय।